Good morning, students. In the last class, we were discussing a definition of women's studies and the basic objectives that are of this paper that we are studying in this semester. So, just a brief revision, and then we'll be moving to the next topic, that is feminist theories related to women's studies. Women's studies, as we have discussed, is an interdisciplinary study of women and society. So we have discussed in the last class that basically the experiences of women, औरतों की जो भी अनुभूति है, experience है society में regarding different things, वो हम women study में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ जो society और culture का gender construct है वो हम विमेन स्टडीज के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये दो चीजें बेसिक हैं, विमेन और सोसाइटी, जिसमें विमेन के खुद के एक्सपीरियंसेस जीवन को लेकर, लाइफ एक्सपीरियंसेस जो भी हैं, और सोसाइटी का जो हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट है या सोच है या समझ है विमेन को लेकर किसी पर्टिकुलर कल्चर में या समाज में, उसको हम विमेन स्टडीज में एनालाइज करने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। और जो इनइक्वालिटी हमें मिलती है औरत और आदमी के बीच में, जिसे हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं, उसके कारणों को खोजने की, समझने की, और क्या हमारी प्रेजेंट सोसाइटी में उसके रेमेडीज, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सब चीजें हम विमेन स्टडीज के अंदर देखेंगे और इस पेपर में पढ़ने और जानने की कोशिश करेंगे। विमेन स्टडीज आर बोथ अ पर्सपेक्टिव एंड अ डिसिप्लिन, ये एक दृष्टिकोण भी है और एक एरिया ऑफ स्टडी भी है। Women's studies talk about women equality and development and seeks to find explanation and remedies for the unequal position of women in the society. So as we have discussed, women's studies can be defined as studies that include studying the root causes of gender disparity and discrimination in society, perceptions and experiences of women about their lives and their educational, social, economical, and political struggles, along with their contribution to society. So in the last class, we have discussed in detail what are the various discrimination that we see at the level of education or maybe work area, in politics, or their ability to take decision, their right of decision making. So all that we have discussed. So all that constitutes women studies. Objectives of women studies, that two we discussed in the previous class. Let us just revise it in brief and then move on to the feminist theories that we'll be discussing today. So the objectives of women studies were promoting better understanding of society and socialization in relation to gender roles and gender discrimination. तो हमने आपको ये समझाया था कि जेंडर रोल्स क्या होते हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जो कार्य या जो भी भूमिकाएं हम औरत से अपेक्षा करते हैं और आदमियों से अपेक्षा करते हैं, वो स्टीरियोटाइपिकली अलग-अलग होती हैं। तो उन्हें हम जेंडर रोल्स कहते हैं, जो समाजीकरण के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा बचपन से ही सिखाई जाने लगती हैं। और जब इसको हम बहुत स्टीरियोटाइपिकल कर देते हैं, आगे चलकर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो हमारे समाज में ये जो जेंडर रोल्स हैं, ये स्टीरियोटाइपिकल क्यों हैं? औरत और आदमी के लिए अलग क्यों हैं? और किन चीज़ों में ये बहुत क्रूशियल हैं? इसको समझना, इसको जानना, ये एक ऑब्जेक्टिव है हमारे इस पेपर का। To take forward fight of ensuring human rights to everyone irrespective of gender boundaries. दूसरा हमने डिस्कशन किया कि इसी चीज से हमें ऊपर उठकर जो भी अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो मानव अधिकार होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, उसमें जेंडर बीच में नहीं आना चाहिए। एजुकेशन मिलनी है, नहीं मिलनी है, ये औरत, आदमी, लड़का या लड़की होने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इट इज फॉर ऑल. So it is a basic right for all humans to get education. So that perspective we have to discuss and understand. To help both men and women in recognizing and respecting roles played by them without gender bias. हमने ये भी डिस्कशन किया कि जो रोल चाहे वो विमेन प्ले कर रही है या जो मेन है वो प्ले कर रहा है, उन दोनों को रिस्पेक्ट देना है, उन दोनों को वैल्यू करना है, और ये सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, समझाना, जो स्टीरियोटाइपिकल रोल्स हैं उनको छोड़कर एंड्रोगाइनस रोल्स की तरफ बढ़ना, ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है विमेन स्टडीज का। We have discussed what are androgynous roles. When we don't restrict a particular work to be of women or men, for example, child rearing है, parenting है, बच्चों की देखभाल है, वो सिर्फ औरत को करना है, ये किस आधार पर हम करते हैं और क्यों करते हैं?
तो ये गलत है। अगर ऐसा हम सोचते हैं कि सिर्फ जो पेरेंटिंग है या बच्चों की देखभाल है वो औरत का काम है, उसको करना चाहिए, और बाहर का में भी पैसे कमाने हैं या बाहर जाकर वर्क करना है वो आदमी का काम है, तो ये हमारी स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं जो सोसाइटी हमें देता है, और इसको छोड़कर हमें आगे बढ़ना है एंड्रोगाइनस रोल्स की तरफ, जिसमें दोनों पेरेंट्स मिलकर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो पेरेंटिंग की हो या हाउस होल्ड वर्क्स की हो, उसको इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बिना अपने माइंड में ये परसेप्शन रखने के कि ये काम औरत का है या आदमी का है। To investigate the causes of disparity, analyzing structural factors in addition to attitudinal and cultural factors. Another major thing is that ये जो disparity के कारण हैं, इनको analyze करना अच्छे से, और ये culture wise differ कर सकते हैं, उन attitudes को identify करना, ये एक major objective है women studies का. To empower women in their struggle to fight discrimination and injustice. We discussed in the last class, we have discussed various data of maybe educational status of women, health status of women, and a number of things we found that जो discrimination है, disparity है, वो बहुत ज़्यादा है. तो वो हमें प्रूव करने की या बताने की आवश्यकता नहीं है. Established fact है, जब हम डेटा देखते हैं कि वो discrimination भी है और वो डेवलपमेंट में पिछड़ापन भी है, जब हम women के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं. तो ये जो इनजस्टिस है, इससे फाइट करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए जो विमेन का एम्पावरमेंट करना है, वो एक मेजर ऑब्जेक्टिव है विमेन स्टडीज का. To make society aware about the potential of women in contributing in development of society or nation. विमेन जो हाफ पॉपुलेशन है, चाहे हम अपने देश की बात करें या वर्ल्ड लेवल पर देखें, तो उनका कंट्रीब्यूशन, उनको अगर हम एजुकेट नहीं करते, उनको अगर हम वर्क एरिया में लेकर नहीं आते अपने साथ, तो ऑलरेडी एक बहुत बड़े सेक्शन को हम छोड़ रहे हैं. तो वो हमारे विकास को, हमारे देश के विकास को, और इवन वर्ल्ड के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो हम उसमें खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या हम पीछे रह जा रहे हैं अगर हम एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को छोड़ रहे हैं और उनके विकास या डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं. दूसरी, हमने कुछ बहुत बेसिक चीजें डिस्कस की कि अगर विमेन की डेवलपमेंट का हम ध्यान नहीं रखते, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है या ह्यूमन जनरेशन जिससे आगे बढ़ती है, उसकी बेरर तो विमेन ही है, और उसको अगर हम वीक कर देते हैं, तो जो प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन है वही वीक हो जाएंगी. उनका विकास और डेवलपमेंट हम सोच भी नहीं सकते. तो किसी भी सोसाइटी और नेशन के लिए विमेन एक पोटेंशियल है, जिसको सोसाइटी को जिसके लिए हमें अवेयर कराना है, कॉन्शियस कराना है. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हम विमेन के हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, तो बेसिकली हम बच्चों के हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, हमारे परिवार की आने वाली जनरेशन का ही ध्यान नहीं रख रहे. तो ये अवेयरनेस में भी अगर हम जब स्प्रेड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी है, समाज है, वो उसकी हेल्थ को, और सिर्फ हेल्थ नहीं, और भी जो भी कंसर्न्स हैं उनको लेकर शायद ज्यादा जागरूक होगा. टू रेंडर इनविजिबल विमेन विजिबल, एंड इन पर्टिकुलर द विमेन ऑफ द मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड स्ट्रेटा. अब जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो हमने ये भी डिस्कस किया कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में सिर्फ जेंडर के आधार पर नहीं, बल्कि कई आधार पे हमें दिखता है ना. कम्युनिटी के आधार पे दिखता है, कास्ट के आधार पर दिखता है, गरीब और अमीर में दिखता है. तो जो विमेन को हम बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज कह रहे हैं, तो मान लीजिए कोई विमेन है जो गरीब भी है, जो शेड्यूल कास्ट की भी है, या ट्राइबल एरिया की है, तो वो और ज्यादा अंडर प्रिविलेज हो जाती है. तो ऐसे विमेन, इनके जो इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, कई बार वो सामने भी नहीं आते, है ना. जो एजुकेटेड विमेन है, मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन हमने डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है सिर्फ अनएजुकेटेड या रूरल विमेन झेल रही हैं. इवन हम जब सिटीज की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, तो वहाँ हमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन दिखता है. तो वो विमेन जो एजुकेटेड है, वो फिर भी उन चीज़ों को लाइट में ला पाती हैं, उनके बारे में बात कर पाती हैं, डिस्कशन कर पाती हैं. पर जो हमारी अंडर प्रिविलेज्ड विमेन हैं, वो उनके इश्यूज और कंसर्न्स कई बार सामने भी नहीं आते. तो ऐसा जो हमारा सेक्शन है जो विजिबल नहीं है, उसको विजिबल कराना भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव है विमेन स्टडीज का. तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो विमेन स्टडीज के हमने डिस्कस किए थे. Now moving on to theories that we have to discuss today. Feminist theories. So we'll be discussing a liberal feminism, radical feminism, and Marxist and socialist perspective today. Starting with liberal feminism. So when we are discussing this gender inequality, there are different perspectives
theories that give reasons and understanding of this discrimination, and what could be the probable solution to fight with this discrimination or to remove this disparity. So the first one is liberal feminism, which argues women's unequal access to legal, social, political and economic institutions causes women's oppression. Their remedy advocates women's equal legal rights and participation in the public spheres of education, politics, and employment. So in liberal feminism, basically liberal feminism में ये हम पर्सपेक्टिव जो है वो ये समझाता है कि जो भी डिस्पैरिटी या अनइक्वल स्टेटस विमेन फेस कर रही है, उसका बेसिक कारण ये है कि जो हमारा लीगल सिस्टम है, यानी जो हमारा न्याय का सिस्टम है, जो हमारा समाज है, जो हमारा राजनीतिक माहौल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे विमेन को दबा कर रखा जाता है और इक्वल एक्सेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, चलिए लीगल राइट्स हम डिस्कस करते हैं ना। बहुत समय तक जो पिता की संपत्ति है उसमें लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता, और हम ये देखते हैं कि लड़की अपने को वीक क्यों महसूस करती है, शादी हो गई, वो चले गए, गर्भवती है, जो ससुराल है अच्छा नहीं मिला, तो जो उसको लगता है कि अपने घर से भी अब सपोर्ट नहीं मिलना है, क्योंकि वहां तो मुझे कोई जो है प्रॉपर्टी में राइट नहीं है। अब ये लॉ बन गया है, पर स्टिल अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि अभी कितना फॉलो हो रहा है, तो वो एक रिसर्च का विषय भी है, और हमें खुद आपस में जानने की भी जरूरत है कि कितना वो लॉ फॉलो हो रहा है। अपने ही घरों में हमें आसपास देखने की, जानने की कोशिश करनी है। तो ये डिस्पैरिटी हम देखते हैं कि जो लीगल में भी राइट्स हैं, तो वो क्या इक्वल हैं विमेन और मेन के। तो अभी 3 तलाक वाला जो आया है, लॉ आया है, तो इन द सेम वे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट लाइफ के डिसीजंस में क्या इक्वल राइट्स हैं, हमें लीगल राइट्स जो हमारे हैं। और सोशल पॉलिटिकल अगर हम पार्टिसिपेशन देखें, तो जो पॉलिटिकल हम जब पॉलिटिकल स्टडीज करते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं, तो पॉलिसी मेकर तो वही है ना जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर, तो कितनी विमेन है उसमें। हम रिजर्वेशन देखते भी है तो सबसे नीचे लेवल पे जो पंचायत है वहां पे देखते हैं कि 30% है रिजर्वेशन, और जो हमारी मेन पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट है, जहाँ लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, तो ये थियरी ये कहती है कि शायद अगर पॉलिटिकल जो हमारे पॉलिसी मेकर्स उसमें से 50% विमेन हो जाए तो हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी, इस इनइक्वालिटी को हम कर्व कर पाएंगे। तो उनका ये कहना है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या समाज में जो औरत का स्थान है या जो लीगल राइट्स हैं, उनको अगर हम इक्वल कर दें तो शायद इससे हम लड़ सकते हैं, इससे हम फाइट कर सकते हैं। So that is the thought behind liberal feminism. Now coming to radical feminism. Radical feminism का कहना है कि नहीं, अगर हम ये कर भी दें, फॉर एग्जाम्पल हम ये पंचायत सिस्टम जो है हमारा, जहाँ पे रिजर्वेशन हो गया है पॉलिटिक्स में, उसी को लेते हैं कि दो वी हैव गिवन 30% रिजर्वेशन टू women and now you have देयर रिप्रेजेंटेशन। पर हम क्या देखते हैं हमारे गांव में, आप सबका ऑब्जर्वेशन होगा, बहुत सारे बच्चे हैं रूरल बैकग्राउंड से, कि ऑफन वी फाइंड कि women is a dummy representative and the main decisions or the work is being done by husband or her family. So that is what radical feminism talks about, कि even if you do that you cannot stop oppression, क्योंकि इसका जो बेसिक कारण है वो पेट्रियार्कल सिस्टम है हमारी सोसाइटी का। जब तक हम पेट्रियार्की को खत्म नहीं करेंगे जड़ से, ये जो डिफरेंस है, ये जो अनइक्वालिटी है, वो नहीं जाने वाली। सो बेसिकली दे आर नॉट टॉकिंग कि जो लिबरल फेमिनिज्म है वो कहता है कि पेट्रियार्की के अंडर हमें इक्वल लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स देने हैं। और रेडिकल फेमिनिज्म कहता है कि ये जो पेट्रियार्की सोच है, इसी को हमें जड़ से खत्म करना है, क्योंकि ये जो सोच है वो एक सोच को पैदा करती है कि जो विमेन की बॉडी है या विमेन के ऊपर हमारा कंट्रोल मेल का होना चाहिए, जो रिजल्ट करता है वायलेंस को, ऑब्जेक्टिफिकेशन को, सोशल जो भी डिस्क्रिमिनेशंस है उनको। सो बेसिकली दैट इज व्हाट इज द थॉट बिहाइंड रेडिकल फेमिनिज्म. Let's see. Radical feminism claims women's oppression originates in sexuality. They argue women's bodies are controlled through violence, objectification, and social institutions such as medicine and religion. Radical feminism see sexism as the oldest and most pervasive form of oppression. They argue that the eradication of patriarchy and compulsory heterosexuality are key to ending gender oppression. This would be accomplished by increasing women's control over their bodies, including transforming sexuality, childbirth, and motherhood. So this is
what is radical feminism. Coming to the third perspective is Marxist or socialist perspective of feminism. So they say the root cause of gender inequality is capitalism. That is economic equality. If somehow we are able to do, then this would automatically improve the situation. So they argue capitalist and individual men exploit women's unpaid reproductive labor within the family. So there's so many work that women do, but since they are not paid for that work, this discrimination prevails. फॉर एग्जाम्पल आप लोग को हमने चीज बताई कि व्हेन वी से कि कौन सी औरत काम करती है और नहीं करती है, तो हम सब ने ये हंसकर डिस्कशन किया था कि हम सब की जो मदर्स हैं, मान लीजिए जो हाउस मेकर्स हैं, घर में रहती हैं, तो क्या वो काम नहीं करती? पर हम जब जनरल बात भी करते हैं या अपना सर्वे फॉर्म भरते हैं कि कौन कामकाजी महिला है और कौन नहीं, तो हम उनको नहीं काम करने वाली कैटेगरी में टिक करते हैं या डालते हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या वो काम नहीं कर रही हैं? घर के जो यूजुअल काम है अगर वो शायद ना करें तो हमें समझ में आएगा, या एक दिन मम्मी की तबीयत खराब हो जाए तो वी आर एबल टू सी कि हाउ मच वर्क exceeds and we feel we are tired doing all that work. So the basic thing is that कि work they are doing but they're not being paid for that work, because जो हमारी patriarchal society है उसमें हम उन्हें ये बता देते हैं कि ये घर का काम है, you are supposed to do that, so it is never counted. The same work, same cooking thing when a man does in a restaurant or at a workplace is paid for that, but a woman cooking daily in the families is not being paid for it. So it is all about paid labor and not paying the labor. So जो इसी तरह से जो पेरेंटिंग है, चाइल्ड रेयरिंग है, रिप्रोडक्टिव लेबर है, ये सारा अनपेड फॉर्म में होता है, which maybe keeps the women behind when it comes to economic equality or participation. Women are also exploited as a low-wage and expendable reserve army of labor. Marxist feminists claim patriarchy is produced by capitalism and will end with capitalist demise. Socialist feminists argue patriarchy and capitalism are separate systems of oppression. So little differences there between socialist perspective. They think these two things are separate. They call for a transformation of relationship within the family through redistribution of responsibilities and changes in access to education, healthcare, economic opportunities, and political power. So these were the four main theories that we had discussed in this class. In the coming class, we'll be discussing psychoanalytical feminism applies Freudian theory. How in the starting or in the childhood itself the socialization या जो समाजीकरण बचपन से होता है वो कैसे सोच में फर्क ला देता है, जिसके कारण हम विमेन को सप्रेस करते हैं, ऑप्रेस करते हैं, या खुद विमेन की सोच अपने लिए हो जाती है कि मैं सेकेंडरी सिटीजन हूँ। तो ये जो हम कह सकते हैं हमारी जो साइक है ये बचपन से बनती है थ्रू सोशलाइजेशन। तो इस पे हम थोड़ी लाइट थ्रो करेंगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।